Good morning to all of you. Welcome to class 12th. Okay, and today's chapter topic is combination of capacitances. देखो हमने तुमको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन कनेक्टिंग टू कैपेसिटर्स. ठीक है. नाउ टुडेज न्यू टॉपिक इज कॉम्बिनेशन. So next heading is combination of capacitors. होता क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें डिजायर्ड कॉम्बिनेशन चाहिए और हमारे पास हो सकता है कि वो कैपेसिटर्स नहीं हो. देन वी हैव टू कनेक्ट सो मेनी कैपेसिटर्स जस्ट लाइक रेजिस्टेंस combination. So in the same way, capacitors are also connected in two types of combination. One is series combination in circuit and second is parallel combination. Okay, series combination and second is parallel combination of capacitors. So now first heading, write down first heading, series combination. Write down in your notes. So first is series combination of resistance. Suppose we have given three or more capacitances. We have one capacitance. These are the plates of capacitors having plus Q charge and minus Q charge. And the capacitance of this capacitor is we can consider C1. We have second capacitors. These are the plates of second capacitors. The capacitance of this is C2. And the third capacitor is we have the capacitance of this, we have C3, and we want to connect these three capacitors in series combination. Okay, so what is the method of series combination? This is the second plate. Now you see here, this plate has charge plus Q and minus Q. This plate, okay, and we connect the second end of this capacitor, first capacitor, to the first end of the second capacitor. And the second plate of the second capacitor is connected to physically connected to the first plate of third capacitor. So in the same path, on the same path, these three capacitors are connected in series. Okay. Now, and this combination is connected by a supply and a switch. We connect this. Okay, to send the current. This is the P and this is your supply. So we have connected three capacitors C1, C2 and C3 in series combination. Now what happened? We have given first plate charge, amount of charge plus Q to the first plate of first capacitor C1, and the second plate have charge. देखो how the charge is distributed. This plate is plus Q charge. ओके, जैसे ही हमने इस प्लेट को प्लस Q चार्ज दिया, इसके अंदर सरफेस पर बाय इंडक्शन मेथड नेगेटिव चार्ज कम्स एंड द सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कम्स ऑन आउटर सरफेस एंड दिस पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू द फर्स्ट प्लेट चार्ज टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर लाइक दिस. सो दिस है प्लस Q चार्ज एंड दिस चार्ज इज removed from here. So this plate is positively charged and this plate becomes equally negatively charged. Now this plate becomes positively charged. This charge of outer surface below end comes at this plate. And again, by the method of induction, on inner side negative charge is induced. So and equal amount of positive charge is induced here. So this positive charge of outer surface goes on the first plate of the third capacitor. So this plate is again becomes positively charged. Okay, so this is removed here and this plate becomes negatively charged. Right. Now in the same manner, by the method of induction, on the side this plate, this side has negative charge and this is equal positive charge, and in the process of arcing by arcing method, this is goes from here, removed from here, and this plate becomes equally negatively charged. ऐसे हम कैपेसिटर की प्लेटों पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं. राइट. Now this we see that in series combination of these three capacitors, one is C1, second is C2 and third is C3. We see that along the same path, है ना, this is the amount of charge
which is equal on each plate of the capacitors. बस यही एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर है कि जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हर प्लेट पर, हर कैपेसिटर पर the amount of charge is same. So this is the very important point here in series combination. ठीक है, in series combination charge is same, है ना, on each capacitor. Charge is same on each capacitor. This is the very important point below. Okay, यहाँ पर हमको ये नोट करना होगा कि हर कैपेसिटर पर चार्ज की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है. ठीक. नाउ व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल? सपोज across the end x and y these three capacitors are connected. We have applied the total potential V. Okay, total potential is V. Now since we have formula C equal to Q upon V or V Q equal to C into V, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि चार्ज से हर पॉइंट पर हर कैपेसिटर पर चार्ज कैसा है, सेम है. इसका मतलब Q सेम है चूंकि हर कैपेसिटर पर, तो इसका मतलब है कि C is proportional to 1 upon V और V is proportional to 1 upon C. इसका मतलब यहाँ पर फॉर सेम चार्ज हर कैपेसिटर के लिए सेम होने पर पोटेंशियल जो होगा वो कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, डिवाइड. यानी यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. अगर इन तीनों कैपेसिटर्स में अगर हम ये ले लेते हैं कि C3 इज ग्रेटर देन C2 एंड C2 इज ग्रेटर देन C1, इसका मतलब जो यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइड होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस के टर्म में डिवाइड होगा. मींस टू से हियर V3 इज लेस देन V2 एंड V2 इज लेस देन V1. वेरी इंपॉर्टेंट. और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर निकल करके आ गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर्स के एंड पर क्या डिवाइड होगा, पोटेंशियल. सो सपोज वी टेक द पोटेंशियल V1 एट कैपेसिटर C1 and potential is V2 across the end plate of capacitor C2 and V3 potential across the ends of plates of capacitor C3. So here very important point is in series combination charge is same and potential is divided. Okay, and this ratio reciprocal of the capacitance. जो सबसे ज्यादा कैपेसिटर्स कनेक्ट होगा लार्जर अमाउंट का, उसके एंड पर पोटेंशियल सबसे कम होगा. सो राइट डाउन दिस पॉइंट. नाउ these are the very important concept here of series combination. Okay, now आगे अब देखते हैं हम लोग इसके डेरिवेशन के स्टेपों को सेम तो लिखें. Okay, note down this. Okay, now next one. In series combination charge is same on each capacitor and potential is, we have to write here, potential is divided. क्या डिवाइड हुआ है यहाँ पर, पोटेंशियल. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. बार बोल रहे हैं हम, यही कॉम्बिनेशन की विशेषता है कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, डिवाइड होगा और चार्ज सेम. नाउ अब हमको बस वही पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है. सो हटा देते हैं. ओके, सो व्हाट इज द पोटेंशियल, देखें जरा. हर कैपेसिटर्स की प्लेटों के बीच में हम V1 V2 V3 को कैलकुलेट करें. सो पोटेंशियल across the ends, okay, across the ends of capacitor, ठीक है, of capacitance C1. कैपेसिटेंस C1 के कैपेसिटर्स की प्लेटों के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, V1 एंड V1 इक्वल टू, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन C. तो V1 इक्वल टू Q अपॉन चार्ज सेम, Q हर प्लेट्स पर वही है, तो V1 इक्वल टू Q अपॉन C1. So this is the potential across the plates of capacitance C1. ठीक है. In the same way we calculate potential across, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको हम, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटेंस. ठीक है, कैपेसिटेंस C2 की प्लेट्स के बीच पोटेंशियल कितना डिवाइड हुआ है, सपोज V2. सो V2 इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन C2. चार्ज सेम, V इक्वल टू Q अपॉन C and the capacitance is C2. In the same way potential across
कैपेसिटेंस C3 और C3 के बीच पोटेंशियल कितना होगा प्लेट्स के बीच V3, हमने V3 माना है, V3 इक्वल टू Q अपॉन C3. ओके, नोट डाउन. सो नाउ टोटल पोटेंशियल ऑफ द कॉम्बिनेशन इज V. सो नेक्स्ट स्टेप इज, इसको हटा देते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप इज टोटल, ठीक है, टोटल पोटेंशियल ऑफ कॉम्बिनेशन. टोटल पोटेंशियल ऑफ कॉम्बिनेशन. ठीक है, देखो ये स्टेप बहुत सरल ड्राइव है, बस इसके मेन कंसेप्ट जो होते हैं, मेन कंक्लूजन, उनको फाइंड आउट करना है. डेरिवेशन स्टेप बहुत आसान होते हैं. टोटल पोटेंशियल ऑफ कॉम्बिनेशन बी टेकन बी, so B will be divided in B1, B2 and B3. So B equal to the sum of these three divided potential. Now substituting the value of, है ना, हम यहाँ पर ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. देखो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 and what is the common here? Q. So Q is taken outside. ठीक है, दिखाई दे रहा है. देखिए, सो क्या चलेगा स्टेप 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. समझ में आ रहा है इसको? ये नाउ दिस इज द रिजल्ट. इसको हम इक्वेशन डाल देते हैं. सपोज 1. नाउ देखो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ कॉम्बिनेशन Q. टोटल पोटेंशियल ऑफ कॉम्बिनेशन अक्रॉस एंड एक्सेप्ट बाय V. अगर हम टोटल कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन तीनों का क्या मान लें, C, है ना, तो क्या होगा तुम्हारा, देखो जरा, इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन की अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C मान लें, देन व्हाट हैपेंस, V इक्वल टू Q अपॉन C. देखो जरा यहां पर टोटल पोटेंशियल ऑफ कॉम्बिनेशन इज V, total charge of combination Q, okay, and total capacitance or equivalent capacitance is C, then V equal to Q upon C, and this C is the equivalent capacitance. Okay, so substitute this value here. यानी इस वैल्यू को क्या करें, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें, then Q upon C equal to what, Q or 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. So what, Q से Q cancel and final result is 1 upon C equal to 1 upon C1 C2 plus 1 upon C2. This is the result, this is the formula for series combination. Okay, so many numericals, है ना, and circuit diagram questions can be solved with the help of this relation. Very important relation and very important concept. Once again, rewind. Recapitulate this point. In series combination, charge is same and potential is divided. And what is the relation? In series combination of capacitance, 1 upon C equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, है ना. और फिजिकली देख करके मालूम करने का तरीका है कि हम इनको इस तरीके से एक ही लाइन के अलोंग तीनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं. हालांकि जब सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, है ना, थोड़े से जब तो हमको फिजिकली देख के नहीं मालूम कर पाते हैं कि ये सीरीज में है या पैरेलल में. ठीक है, देन वी हैव टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, है ना. वैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट में फिर हमको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तब मालूम पड़ता है कि वो सीरीज में है कि पैरेलल है. नाउ पहले हम देखते हैं, फिर इसके बाद हम अच्छे जो न्यूमेरिकल सेंस के एनसीईआरटी के वो सब सॉल्व कराएंगे. ठीक है, पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन और ठीक. तो क्या यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकले, सीरीज के कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंटों को नीचे नोट कर ले. पॉइंट नंबर 1 फिर से एक बार नोट कर ले. सीरीज कॉम्बिनेशन में पहला पॉइंट Q इज सेम. ओके, अलग से ये नीचे लिख ले कॉपी पर, नोट्स पर. Q इज सेम फॉर ऑल कैपेसिटर्स. जितने भी कैपेसिटर्स कनेक्ट हैं उनके लिए Q क्या होगा, सेम. सेकेंड, पोटेंशियल इज डिवाइडेड. पोटेंशियल तुम्हारा क्या है यहां पर, पोटेंशियल V इज डिवाइडेड. और किस मैनर में डिवाइड हो रहा था, किस मैनर में डिवाइड हो रहा है बोलो, V साइड में लिख देना, V इज रेसिप्रोकल ऑफ C.
सी के कैपेसिटेंस, जितने भी कैपेसिटर्स कनेक्ट होंगे उसके रेसिप्रोकल के फॉर्म में V डिवाइड होगा। जो सबसे लार्जर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस कनेक्ट होगा उसके अंदर पोटेंशियल सबसे कम होगा। एंड थर्ड पॉइंट यहां पर देखें, व्हाट इज द इक्विवेलेंट 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। उस दिन हमने तुम्हें बताया था, है ना, कि यहां पर तुम वैल्यू पुट करके देखना, ये फार्मूला मैथमेटिकल क्लियर शो कर रहा है कि जितनी जो भी C1 C2 C3 C4 C5 जो भी कैपेसिटर सबसे कम वैल्यू का कनेक्ट होगा इक्विवेलेंट उससे भी कम आएगा। ये वैल्यू प्लेस करके यू चेक दिस, you verify and check this, the minimum value of the capacitance individual